Good afternoon and welcome to Unacademy Center Guwahati. Today we are a happy panel because we have with us one of our former students and a very successful one, Mr. Chandaditya Borua. Chandaditya, welcome back to the center. How are you? I'm good. So now that we have you here finally back with us again, first of all, your journey with us, it began sometime in the previous year. You came to us after your NEET, your first attempt at NEET in the month of July. So just share with us what was your journey like with Unacademy Guwahati. I really enjoyed attending all the classes, and I have maintained 100% attendance. Of course. I have given all the exams held by Unacademy, which have really helped me achieve what I have achieved in ReNEET 2026. And what do you think that one point was about your entire journey that had really helped you reach this stage where we can say that you are a successful candidate? One thing that you gave from your end, one thing that you saw us giving from our side. Hard work and dedication, and also all my teachers who have really helped me to understand all the topics and helped me with almost questions from every topics, which have really helped me attempt almost all the questions in ReNEET 2026. One thing that I can say from my observation of your preparation is the fact that this one thing that most students do not do is keep a mistake copy. Students are aware that they make mistakes. They are constantly told by the teachers that these are the mistakes you have been making, or these are the mistakes that you are likely to make, but they do not keep a track of those mistakes. This is one thing that I should point out so that the viewers can also take note of it. It is exceptionally important to keep a mistake copy. It is very easy to know what your strong points are, but it is equally difficult to find out where you are lacking. And keeping a mistake copy will give you this track, this constant reminder that these are the weak points, these are the points where you need to work harder on. चंद्रदत्त कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। कितना स्कोर आ रहा है इस बार तुम्हारा? 609. एक्सपेक्टेड है कि 609 मार्क्स आएगा, राइट? तो मुझे ये बताओ कि लाइक तुम्हारा जो पिछला एक साल जो रहा यहाँ पे तुमने प्रिपेयर किया, तो लाइक जर्नी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछूंगा कि स्ट्रगल क्या था, चैलेंजेस क्या था तुम्हारे लिए? एवरी वीक दो एग्जाम देने का वो मेरा पहला एक हैबिट नहीं था, तो वही मेरा पहला चैलेंज था। और एवरीडे क्लास आना, वो भी गुवाहाटी सिटी में, मैं मतलब इतना दूर से आता हूँ, तो वो भी एक चैलेंज था। उसके ऊपर जो नया मॉड्यूल्स मैंने पढ़ा, उसमें इतना सा न्यू टॉपिक जो रिक्वायर करना था, वो भी एक चैलेंज था। लेकिन विद टाइम मैंने ओवरकम किया ये सब। ओके। और एक बात मैं पूछता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन कि लाइक यहाँ पे जब तुम पढ़ने के लिए आए, तुमको फैकल्टी का सपोर्ट या स्टाफ का सपोर्ट कैसा मिला? कितने हेल्पफुल थे तुम्हारे फैकल्टी तुम्हारे? फैकल्टी ने बहुत हेल्प किया मुझे, टॉपिक से लेके डाउट्स, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स, और उसके बाद एग्ज़ाम्स का रिव्यू कराना, उन्होंने मतलब A to Z मुझे सब करवाया। तो मैं सबको ये बात बताता हूँ, एक बार मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है। तो पहला मुझे ये बताओ कि कितना दिन तुमने टोटल जो यहाँ पे एक साल जो पढ़ाई किया हमारे साथ, कितना दिन ऐसा था कि जहाँ पे तुम एब्सेंट हुए थे? एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं एक भी दिन ऐसा नहीं है जब वो एब्सेंट हुआ था, यानी फुल अटेंडेंस। पहला चीज़ ये है, क्योंकि बीमार नहीं पड़े। बीमार होना, आज बुखार हो गया, आज नींद बहुत आ रहा है सर, आज बारिश बहुत आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? बीमार मेरा एक बार ही हुआ था साल में, और बीमार के दिन भी मैंने एक दो दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो गया, तो उस दिन टेबलेट खा के खाने के बाद भी क्लास आया। सेकंड मैं ये पूछता हूँ कि जब तुम यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, तो क्योंकि नीचे जाते ही GS रोड मिल जाता है यहाँ पे ना, पूरा क्राउडेड एरिया, तो कितना बार ऐसा हुआ होगा पूरे साल में कि तुम नीचे गए थे? 3-4 बार। 3 या 4 बार। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेक मिलते ही बच्चे नीचे भाग जाते हैं, ये पूरे साल में 3 बार या 4 बार ही नीचे गया था। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और थर्ड मुझे ये बताओ, क्या पूरे साल, ये जो एक साल तुमने जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, क्या तुम सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी एक्टिव थे? नहीं, मैं एक्टिव नहीं था। कभी होने का मन नहीं किया? होने का मन नहीं करता है। जब तुम ऑफलाइन चले जाते हो, दोस्त लोग को देखते नहीं हो कि वो लोग मतलब यहाँ जा रहे हैं, यहाँ घूमने आए, तो तुम्हारा खुद का मन नहीं करता है कि मतलब जब आप एक्टिव होते हैं तब आप दूसरों के अपडेट्स देखते रहते हैं, यही लाइक कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो खुद का भी मन करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कभी लाइक और एक बात ये पूछता हूँ, जैसे लाइक आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइट? वो सोचते हैं कि अपने घर पे कंफर्टेबल में बैठ के, रूम पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग कर लेते हैं, तो ऐसा ख्याल तुम्हारे माइंड पे कभी नहीं आया? नहीं, मैंने 11 से मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग किया है, क्योंकि ऑनलाइन से मुझे इतना
अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है जो एक क्लासरूम में एक टीचर के सामने जो मैं समझ पाता हूँ टॉपिक्स को, और जो टीचर्स देखते हैं कि ये मेरा टॉपिक में डाउट है, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने बोला है कि मैं इनएक्टिव रहता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन से दूर ही। बहुत अच्छा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि रीनीट से पहले या नीट से पहले क्या तुमको याद है तुमने कितना फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया होगा? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर अराउंड 300 मॉक टेस्ट है। 300 मॉक टेस्ट, ये हमको याद रहा, 300 मॉक टेस्ट। हमने जो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, मैंने OMR भी दिखाया था, वो OMR इसी बच्चे का था। हमने यहाँ पे रीनीट से पहले यानी करीबन फरवरी यानी मार्च से कंटिन्यू हमने यहाँ पे इसका फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था। नॉट ओनली सिर्फ हमारा पेपर, बट अक्रॉस जितने भी सारे कोचिंग है इंडिया में, सारे कोचिंग के डिफरेंट मॉक टेस्ट इसने दिया है और डेली दिया है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दिन में एक नहीं, दिन में 2 मॉक टेस्ट और कभी कभी दिन में 3 मॉक टेस्ट भी हमने दिया है। तो इसका हेल्प कैसे मिला कि ज्यादा मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होता है? ज्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर होता है, जिससे क्वेश्चन नीट में बहुत चांसेस होता है कि फेमिलियर हो, और मेरा फेमिलियर आया भी है, और अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं उसके टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन आते हैं जो कि उसी अप्रोच से करने पड़ते हैं जो मैंने का मॉक टेस्ट में दिया था। तो उससे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होता है और एक फ्लो भी बनता है कि घर में मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। उससे नीट में भी एक जो टाइम का फैक्टर होता है वो थोड़ा एफिशिएंटली मैं यूज़ कर पाता हूँ एग्जाम में। और जब तुम यहाँ से चले गए अपने घर के लिए फॉर द एग्जाम, तो उसके बीच तुमको कैसा क्या हेल्प मिला हमारे साइड से? कैसे तुमने एग्जाम दिया? तुम घर चले गए थे यहाँ से, तुम अलीगढ़ जब चले गए थे, तो उस पीरियड में तुमने कैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया? आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन में वो भेजा और मेरा पापा ने उसको प्रिंट करके लाया। तो मैं घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देता हूँ कि मुझे कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कहीं से साइलेंट प्लेस में जाके अच्छे से ऐसा 3 घंटा लेके बैठता हूँ और तो एग्जाम देता हूँ मैं। मतलब घर जाने के बाद भी कंटिन्यू एग्जाम चल रहा था 2 दिन पहले तक, राइट? नीट के 2 दिन पहले तक कंटिन्यू एग्जाम चल रहा था। एक बार ब्रेकअप बता दो, तुम्हारा कितना स्कोर कर रहे हो इन बायो, इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स? इन बायो मेरा 355 आ रहा है। 355 इन बायो, फिजिक्स में 121 फिजिक्स, और केमिस्ट्री में 133 केमिस्ट्री। एक बात ये बता दो कि इस बार का पेपर कैसा था? तुम्हारा क्या बोलना कि पेपर वाज इजी, मॉडरेट, टफ, क्या बोलना चाहते हैं? कंपेयर टू नीट 2026 पेपर टफ था, और बायोलॉजी इजी था, केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे टफ लगा। करेक्ट, टफ पेपर था। अब आगे का प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान क्या है? MBBS पढ़ना है, उसके बाद PG करना है। ओके, सो आई होप कि चंदा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनेगा, और हम सब मिलकर इसको विश करते हैं ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू चंदा मिलने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो चंद्रित्य, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम फिर से। बहुत अच्छा लगा, तुम इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, और हम फाइनल रिजल्ट के लिए वेट करते हैं, फिर देखते हैं हमें कहाँ क्या मिलता है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि रैंक तुम्हारा काफ़ी अच्छा ही आएगा, क्योंकि इस बार का पेपर जैसे सबको पता है काफ़ी डिफिकल्ट आया था, और फिजिक्स पार्ट तो काफ़ी डिफिकल्ट ही आया था। ठीक है, तो मैं तुमको ये पूछना चाहता हूँ एक बच्चे की तरफ से, ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उसकी तरफ से, कि फिजिक्स को पहली बात तो एज अ सब्जेक्ट अप्रोच कैसे करते हैं? फिजिक्स को तो पहली बात बहुत स्टूडेंट्स नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एज अ नीट स्टूडेंट, और मैंने एज अ स्टूडेंट जिसने नीट अपियर किया है, आई फील फिजिक्स इज अ की फैक्टर इन द नीट एग्जाम, क्योंकि बायो ऑलमोस्ट सभी लोग कर पाते हैं, लेकिन फिजिक्स ही एक है जो रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि मार्क्स स्टूडेंट्स का वेरी यहाँ पर ही करता है। तो फिजिक्स को प्रायोरिटी देना चाहिए मेरे हिसाब से। गुड, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा बायो और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत मेरे से हो जाता है, तो मैं सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़ के, क्या है पॉसिबल है सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़ के नीट हो जाएगा? नहीं, फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट, राइट? अच्छा, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारा, क्या होता है कि फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा तो डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई बच्चा सोचो कुछ करने बैठता है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस कर रहा है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिफिकल्ट चैप्टर आ गया, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, तो 3-4 क्वेश्चंस ना उससे नहीं बने, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेट होके वो या तो छोड़ ही देता है बिल्कुल वो पढ़ना, बहुत, या ऐसे बोलता है कि नहीं फिजिक्स बहुत टफ लग रहा है तो मैं करूंगा ही नहीं। इसको टैकल करने का क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इसको मैंने कैसे टैकल किया, इसको मैंने थ्योरी पढ़ा उस टॉपिक से, और उस टॉपिक से जितना भी इजी सवाल हो सकता है मैंने वो इजी सवाल पहले किया, क्योंकि आप
अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो वो क्वेश्चन हार्ड है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप रिलेटिवली अगर आप इजी क्वेश्चन करें तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेस बन जाएगा उस टॉपिक का, कॉन्फिडेंस पे मिलेगा ना, कॉन्फिडेंस मिलेगा और उस टॉपिक से आपको वो प्यार भी हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस कर पाए उस टॉपिक से। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अनअकैडमी में जो लास्ट ईयर तुमने पढ़ा है, ठीक है, तो जो भी टीचर्स जिसने भी जो भी पढ़ा है उसका रिलेवेंसी कितना था हमारे एक्चुअल एग्जाम्स? रिलेवेंसी था, बहुत था, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो यूनिट में एज इट इज तो नहीं आए लेकिन अराउंड वो क्वेश्चन आया, वो टॉपिक जो आपने पढ़ा और जैसे आपने अप्रोच किया सब टीचर्स का, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में हेल्प किया है। ओके, और एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे ही बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट देते हैं, तो अगर सोचो मॉक टेस्ट में कभी कम मार्क्स आ गए, तो जैसे सबका होता है, शायद तुम्हारा भी हुआ होगा, तो वो लोग ना थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े से डाउन लो फील करने लगता है कि पढ़ने का फिर मन नहीं करता, तो इससे टैकल कैसे किया जा सकता है? वो तो एक नॉर्मल बात है कि कोई फ्रस्ट्रेट होगा अगर मार्क्स कम आए। इसको टैकल करने का एक ही सोल्यूशन है कि आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम देना है। ये नहीं है कि आपको वो एग्ज़ाम फेयर वाला चीज़ बैठ जाए, आपको एग्ज़ाम देना है और आपको फाइट करना है, तभी आपको इन दी एंड आपको अच्छा ही लगेगा। राइट, तो थैंक यू सो मच आदित्य, और इतने टफ पेपर में भी तुमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट था, उसके बाद भी तुमने इतना अच्छा स्कोर किया है। आई थिंक जो प्रैक्टिस हमने करवाया या जो प्रैक्टिस तुमने खुद से किया है वो कहीं ना कहीं अभी उसका रिजल्ट मिल रहा है ना, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।